So, hello, dear students, welcome to Learning Continues. Hope you are doing well. I am well and maintain the precaution that our government has ordered. Okay, today I shall start a new chapter from your valediction. That is a chapter where we will study about time management. That is, we have to manage our time, we have to be in time, we have to uh, adjust our time. So the moral of the story is time management, and the story is know your time. That is, you have to know, you have to get the idea, you have the idea about the time and the work done in between the time or before the time. So time management is the art arranging, organizing, scheduling, and budgeting one's time for the purpose of generating more effective work and productivity. Time management is nothing. Time management is an art of arranging. We have to arrange ourselves according to the time. We have to arrange, we have to organize, we have to schedule our daily routine, daily work uh, according to our time, and which is the result of the time management is to generate or to do the work more effectively and productivity. So in this chapter, I have a book and I shall dictate the story of Know Your Time, or I shall read out the story, I will read out the stanza, and along with I shall discuss it, I shall explain it into Hindi so that you can easily understand. And if you have any queries, any doubts regarding the topic, regarding the understanding, regarding the story, then you are feel free to ask me and read out the chapter properly so that you can get the idea. You utilize your time after reading the story. So stay connected with me for new updates, and if you are new in my channel, then subscribe my channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then it will automatically notify when my next video will upload it. And if you like my video, then press the like button and stay connected with me, and thanks for watching. So let's start the chapter. Take out your validation book. Those who have validation book, take out your validation book and follow me. So let's start the chapter. Know your time. The management is important for everyone. The core of time management is to become intentional about how you spend your available time. It's about making the most of these resources. This does not necessarily mean that the goal is to be super productive every minute of the day. Instead, it's about creating room for the things that matter most to you. If you can become very efficient in your approach to schoolwork, then you could create more time for your hobbies or relaxing with your family or whatever you wish. सो इस स्टेंजा में ये कहा गया है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए, और अगर हम इस मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, तो ये
हमारे लिए जो बाकी वक्त बचेगा वो हम यूज़ कर सकेंगे किसी और एक कामों में। एंड इसके लिए क्या है कि अगर हम टाइम को सेव करेंगे तो हमारे लिए और कुछ जो रिसोर्सेस है वो मिलेगा। एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो टाइम सेव करोगे वो हर एक मिनट या हर एक पल क्या है इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये है कि अगर इस टाइम को मैनेज करने के बाद हमें थोड़ी बहुत टाइम मिले, टाइम को जो मतलब कोई काम करने के बाद जो टाइम बचता है अगर वो हम अपने हॉबीज़ जो है उस पे लगाए तो। और हमें क्या करना चाहिए, स्कूल में अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम स्कूल के कामों में उलझे रहना है, और उसके बाद जो टाइम बचेगा वो हम अपने हॉबीज जो है और अपने फैमिली के लिए टाइम देना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक काम को मैनेज करते हैं, मतलब टाइम जब होगा और या टाइम के अंदर अगर हम कुछ चीज़ें या कुछ काम अगर हम कर लेते हैं तो बाकी जो टाइम बचेगा वो हम क्या करेंगे, अपने हॉबी जो है, जो शौक है हमारे, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, या हमें जो विश है हमारे वो हम कर सकेंगे। अभी हम स्टूडेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, स्कूल के एक्टिविटीज़ या स्कूल से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड जो काम है वो टाइम से पहले कर लेना चाहिए। यानी कि टाइम जब है, सपोज आज मैंने कुछ टास्क दिए तुम्हें आज ही लिखना होगा, तो तुम क्या करोगे, आज ही इसे लिख लोगे या इसे आज लिखने के बाद सीख लोगे। अब अगर जो आज देंगे वो अगर तुम लिख लेते हो या सीख लेते हो तो क्या होगा, ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद तुम्हें और भी टाइम मिलेगा जो तुम अपने कुछ भी काम कर सकते हो। सपोज आज जो मैंने टास्क दिया है वो तुमने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, ये कल जो मैं टास्क दूंगा या परसों कोई और एक टास्क किसी एक टीचर्स ने अगर देंगे तुम्हें तो क्या होगा, आज जो तुमने नहीं किया वो भी और उसके साथ कल का जो टास्क है वो भी करना होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एक पहाड़, एक बर्डन आ जाएगा कि मैं अब ये कैसे लिखना कंप्लीट करूँगा और एक रात में मैं कैसे इन सब सब्जेक्ट्स का नोट्स या क्वेश्चन आंसर मैं सीखूँगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो टाइम पे है या टाइम में हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ ख़त्म करके रख देना चाहिए, और बाकी समय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो हॉबीज़ है, जो शौक़ है वो करेंगे, फैमिली में टाइम देंगे, फैमिली को टाइम देंगे, और जो मन में है वो करेंगे। ओके, an important aspect of time management is planning ahead. Good time management involves keeping a schedule of the tasks and activities that have been deemed important. Keeping a calendar or daily planner is helpful to stay on task, but self-discipline is also required. The most efficient to-do list in the world will not help someone who doesn't look at or follow his her own daily planner. तो टाइम को सेव करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए। अगर हम किसी भी एक एक्टिविटी, किसी एक टास्क करने जाएंगे तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए कि मैं ये टास्क आज ही पूरा करूँगा, मैं ये टास्क 1 घंटे में पूरा करूँगा। और इसी तरह हमें किसी एक सपोज आज वैल्यूएशन का पहला चैप्टर सीखना है तो क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या करोगे कि आज मैं 10 क्वेश्चन सीखूंगा, उसके बाद और 10, ऐसे करके हमें डे वाइज प्लान बनाएंगे। तो अगर ज़्यादा है और अगर कम है तो कम, मतलब एक ही दिन में हम ख़त्म कर देंगे। तो ये सिर्फ कैलेंडर या रूटीन बनाने से नहीं होगा, हमें इसे यूटिलाइज करना होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन यानी कि पंक्चुअल या एक जो
रेगुलरिटी है वो मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम रूटीन बना चुके हो, प्लान कर चुके हो और इसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, यानी कि 10 क्वेश्चन सीखना है, तुम प्लान कर चुके हो कि आज ही ये सीखेंगे, और तुम क्या रूटीन बना के, डेली रूटीन कैलेंडर बना के क्या कर रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो क्या होगा, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तुम। और इससे क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो प्लान है वो प्लान ही रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो यूज नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इसी तरह अगर रहना है तो कोई प्लान मत बनाओ। तो प्लान अगर हम बनाएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे उसी डेज, उसी आवर, उसी के हिसाब से। ओके। The resources needed to complete the task in planner should be made available and accessible easily. This process brings with organizing or cleaning our respective work sessions or study areas. This makes finding resources simpler. Next, with the resources in hand, a plan of action should be made. This is about 2 steps taken to complete that set task. Analyzing the roadmap for action is essential. The different possible ways of accomplishing the task should always be kept in mind. तो इसका मतलब है कि जो काम हम करेंगे इसके लिए पहले रिसोर्सेस चाहिए, मतलब उत्स चाहिए। सपोज मैं आज एक ड्राइंग बनाऊंगा, मैंने एक प्लान किया है, तो इसके लिए ड्राइंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेंसिल, इरेजर, कलर्स, ये सब रिसोर्स क्या है, हमें प्लान से पहले इन सबको इकट्ठा करना है, टुगेदर करना है। उसके बाद एक केस स्टडी करेंगे कि कैसे इस ड्राइंग को बनाना है, एक प्लान करेंगे, और ये पहले रिसोर्सेस आएगा, उसके बाद एक प्लान करेंगे, तब जाके इस प्लान वाइज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और रोड मैप इन एक्शन इज एसेंशियल, यानी कि रोड मैप का मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है कि जिस प्लान से हमें किसी एक प्लान से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसको रोड मैप तुम कह सकते हो। सपोज यहाँ पे आया है कि एक कंस्ट्रक्ट करना है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले रिसोर्सेस यानी कि ब्रिक, सैंड, सीमेंट, रॉड एटसेट्रा तुम्हें क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद एक रोड मैप नहीं, मतलब एक प्लान बनाना चाहिए कि कैसे ये बिल्डिंग खड़ा होगा, कब कौन सा वो चीज़ करेंगे, ये सारे रोड मैप या एक प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए। Monitoring the task is very essential. This is to make sure that there is no deviation from the planner. This helps in reaching the goal faster and more efficiently. Once the task is accomplished, revisiting the complete process is important. This gives insight into any possible betterment for the next schedule. तो मॉनिटर करना चाहिए, यानी कि जो प्लान, सपोज एक 7 डेज का एक प्लान तुम्हारे पास है कि एक दिन में ये करेंगे, दूसरे दिन में ये करेंगे, तीसरे दिन में ये करेंगे, तो तुम्हें ये क्या करना चाहिए, सिर्फ प्लान बना के बैठ जाना नहीं चाहिए। हर एक दिन का उसे मॉनिटर करना है, यानी कि देखना है कि आज जो काम मैंने करने के लिए प्लान किया था फर्स्ट डे पे वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। अभी जब ये प्लान में कोई डिवीजन नहीं आएगा, मतलब इससे कम नहीं होगा, ठीक है। अगर कम करोगे तो क्या होगा कि वर्क जो है वो डिले होगा, और अगर टाइम में कर लोगे तो क्या होगा, वो इजीली और एफिशिएंट होगा, या तुम अपने गोल पे, अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकोगे, फास्ट पहुंच सकोगे। ओके, द मैनेजमेंट हेल्प वन टू स्टे फोकस एंड अचीव देयर सेट गोल्स in an orderly and proficient manner. However, time management is not about filling every moment of the day with productivity. The time management ultimately is about feeling good. It is about having energy and feeling in control of your time. It is about relaxing and enjoying the moment instead of being distracted or worried about your to-do list. It's about creating time in your schedule and your life for the people and activities that matter most of you.
अब टाइम मैनेजमेंट हमें क्यों करना चाहिए? हमें टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना चाहिए कि हमारे लाइफ के जो एवरी मोमेंट या स्पेशल मोमेंट है उसको हम एंजॉय कर सके। अब अगर तुम टाइम मैनेज कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं इस टाइम से पहले नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे अंदर कुछ थिंकिंग हो रहा है या वरीड, या तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि मैं ये काम आज कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि हम किसी भी एक टास्क को जो प्लान किया है उस प्लान के अंदर, यानी कि उस टाइम के पहले हमें अगर हम ये करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, हमें रिलैक्स फील होगा और हमारे लिए अच्छा होगा, हम अच्छे फील करेंगे। हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि खुद अच्छा फील करें। अब टाइम मैनेजमेंट करते समय अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ या टेंस्ड हो जाऊँ तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है या इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो हमारे लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे या जो हम मेरे लिस्ट में वो अगर हम टाइम के अंदर कर देंगे तो हमें क्या है, एक रिलैक्स टाइम मिलेगा अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वरना क्या है, सिर्फ टेंस ही रहोगे और अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वी नीड टू मैनेज आवर टाइम बिकॉज, हमें क्यों अपना टाइम मैनेज करना चाहिए? Organizing our time according to the work we have to do is a good habit. Completing work on time relieves us of stress. कि किसी भी एक काम को अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो वो ये हमारे एक अच्छे हैबिट बनेगा और हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। We have to allow time for all our work. It is a skill required for our growth and development. और अगर हम किसी भी एक काम को टाइम पे करते हैं तो ये हमारे अंदर एक स्किल बनेगा कि मैं ये काम अपने काम में पंक्चुअल रहता हूँ, मैं अपने काम टाइम से पहले करता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक डेवलपमेंट, एक रिवार्ड होगा। Devoting proper time to all activities ensure happiness and success. अगर हम प्रॉपर टाइम में किसी भी एक चीज़ को करेंगे तो हमें फर्स्टेस्ट गोल मिलेगा या हमें सक्सेस मिलेगा और हमें खुशी भी मिलेगा। और सेम थिंग्स अगर हम डिले करते तो हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, टेंशन होंगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा। टाइम इज प्रीसियस एंड वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट इट। और समय क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय जब चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, तो ये एक प्रीसियस थिंग्स है जो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली इट इज़ एसेंशियल दैट वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ बीइंग पंक्चुअल। टाइम मैनेज करने के लिए हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, हमें रेगुलर रहना चाहिए, हमें कंसिस्टेंस रहना चाहिए। हम जो कहेंगे करेंगे वो अपने टाइम से पहले करेंगे, पंक्चुअल रहेंगे तो अच्छा होगा, और पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो ये मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो रीड द पोएम बाय ल्यूइस कैरोल ऑन पंक्चुअलिटी। हियर इज a poem written by Lewis Carroll on punctuality. Let's see what is the poem. Punctuality. Man naturally loves delay and to procrastinate business put off from day to day is always done too late. यानी कि जो लड़के होते या आदमी होते वो क्या करेंगे, वो डिले यानी कि आलसी होते, ज़्यादा से ज़्यादा आलसी होते और डिले करने में वो पसंद करते हैं या डिले करना पसंद करते हैं। और जिसके लिए क्या होता है, जो इसी तरह लेट रहता है उसका बिजनेस, यानी कि अगर वो व्यापारी है तो वो उसका बिजनेस क्या होगा, एक दिन व दिन खराब होगा। अगर वो एक नौकरी करता है तो इसका
मन या उसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। यानी कि अपने प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है वो अगर डिले करेगा तो उस डिले में क्या होगा, हर समय दिन व दिन वो लेट होता जाएगा। लेट एवरी आवर बी इट्स इन प्लेस, फर्म फिक्स, नॉट लूज शिफ्ट एंड वेल एंजॉय द बैक एंड स्पेस एज थ्रो ए बर्थडे गिफ्ट। हमें क्या करना चाहिए, जो टाइम है उस टाइम से पहले हमें काम कर लेना चाहिए, ताकि जो टाइम बचेगा, टाइम काम करने के बाद जो टाइम बचेगा उस फ्री वैकेंट टाइम में हमें एंजॉय करना चाहिए, जैसे हम अपने बर्थडे पे एंजॉय करते हैं और बर्थडे गिफ्ट जैसा मिलेगा वैसा ही अगर हम टाइम से पहले करेंगे, उस समय जो मिलेगा बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वो हमें एज ए बर्थडे गिफ्ट नज़र आएगा या महसूस होगा। यानी कि बर्थडे बर्थडे गिफ्ट पाने के बाद हम काफ़ी खुश होते हैं। तो अगर टाइम से पहले हम कुछ काम कर लेंगे तो बाकी जो टाइम बचेगा उस टाइम में हमें खुशी या हैप्पीनेस मिलेगा। And when the hour arrives, be there that there may be uncleanly hands or rough hair, let no one ever see। और जो टाइम आएगा और जो काम सामने आएगा हमें उसी वक्त ये कर लेना चाहिए। और इसके लिए जो अनक्लीनली हैंड्स, यानी कि जो काम अगर हम करेंगे तो इसका ये मतलब है कि काम जो है वो टाइम से पहले कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो हाथ है वो जो क्लीन नहीं है वो किसी को नज़र नहीं आएगा। और जो हेयर यानी कि बाल जो बिखरेंगे वो भी हमें किसी को नज़र, हमारा जो बाल बिखरेंगे या अनक्लीन या साफ नहीं है जो हाथ, वो किसी को नज़र नहीं आएगा जब अगर हम टाइम से पहले काम कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास जो डे लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और बाहर से आते और काम करते हैं हमारे एरिया पे, और बाद में वो चले जाते हैं शाम को। तो जब शाम को जाते हैं तो उनके हाथों में कोई जो हाथ जो है वो क्लीन रहता है और टिप टॉप होके वो अपने गोल घर लौटते। तो इससे ये देखने को मिलता है कि वो पूरा दिन काम करता है, उसका हाथ जो है वो मैला रहता है, हाथ क्या है क्लीन नहीं रहता, बाल बिखरे रहते, फिर भी जब वो शाम घर लौटता है तो वो टिप टॉप एंड कोई निशान नहीं रहता कि वो एक डे लेबर था। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, काम को कर लेना चाहिए, अपने टाइम में ही काम को कर लेना चाहिए और रेस्ट ऑफ द टाइम हमें अच्छे बन के या अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, ऐसा होना चाहिए। If dinner at 1/2 be placed at 1/2, then be dressed. If at 1/4, make haste to be down with the rest. अगर डिनर 1/2 में आध घंटे में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसी आध घंटे में कर लेना चाहिए और उसके बाद ड्रेस अप करना चाहिए। सेम उसी तरह अगर 1/4 में है, मतलब हाफ एन आवर से और हाफ अगर है क्वार्टर पे है यानी कि 15 मिनट से, तो हमें वो भी कर लेना चाहिए और बाकी जो है वो रेस्ट करना चाहिए। बेटर टू बी बिफोर योर टाइम देन यू आर टू बी बिहाइंड, टू ओपन द डोर व्हाइल स्ट्राइकिंग द चिम दैट शोज ए पंक्चुअल माइंड। और टाइम से पहले अगर हम किसी भी एक चीज़ को कर लेते तो हम पीछे नहीं रहेंगे, और जब डोर यानी कि समय आएगा वो हमें समय से पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो काम है वो कर लेना चाहिए, और इससे हमें हमारे जो पंक्चुअलिटी है वो नज़र आएगा। तो इस पोएम या इस पोएट ने ये समझाया कि लेट पंक्चुअलिटी एंड केयर सीज एवरी फ्लीटिंग हावर, सो शॉल दो कल ए फ्लावर फेयर एंड फ्रॉम ए फाइटिंग फॉर फ्लावर। तो हमें पोएट ने ये समझाया कि समय से रहते अगर हम काम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और रेस्ट ऑफ द टाइम हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा।
In the poem Punctuality, the poet talks about the benefit of being punctual. He says that we can enjoy your leisure only if we do our work on time. The poet feels that it is better to be ahead of the time than behind it. Completing our work on time help us become organized and disciplined. तो यहाँ पे पोएट ने इस पंचुअलिटी पोएम में ये समझाया है कि अगर हम टाइम से पहले अपने काम कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो मिलेगा वो हमें एंजॉय करने का टाइम या समय मिलेगा, और हमें इससे क्या है बेटर फील करेंगे हम अगर किसी भी एक चीज़ को टाइम से पहले कर लेंगे। और कंप्लीटिंग द वर्क हमें क्या होगा, हमें डिसिप्लिन या वेल ऑर्गेनाइज्ड, हमारे मन को आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, हम डिसिप्लिन में रहेंगे। तो चैप्टर इज ओवर नाउ। योर टास्क इज टू रीड आउट द चैप्टर मोर केयरफुली सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर and try to solve out the questions answer. So here are 5 questions. Let's start. What is time management? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट क्या है कि जहाँ पे हम टाइम को मैनेज करेंगे, अपने लाइफ को, रेस्ट ऑफ द टाइम को एंजॉय करने के लिए, और हमें पंक्चुअल रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए, अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि अपने जो अरेंजिंग है, जो शेड्यूल है, उसको अच्छी तरह से अरेंज करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, बजट करना चाहिए और प्लान करना चाहिए। व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, व्हाई? टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो टाइम से पहले अगर हम किसी भी एक टास्क कर लेंगे तो बाकी समय हमें रेस्ट मिलेगा, एंजॉय कर सकेंगे। और टाइम से पहले करने के अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, टेंस होगा और हमें चिंता रहेगी, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानर? प्लानर हमें प्लानर क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लानर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम स्मूथली किसी भी एक टास्क को या प्रोडक्टिविटी को कर सके। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द टाइम इफेक्टिवली? क्या क्या वो स्टेप है मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली? तो 2 स्टेप है। पहले हमें रिसोर्स कलेक्ट करना है और इसके बाद क्या करना चाहिए, एक रोड मैप या प्लान बनाना चाहिए, और इसी तरह इसको प्लान में ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाउ डज मैनेजिंग टाइम हेल्प एवरीवन? मैनेजिंग, अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो क्या होगा या हमें कैसे हेल्प मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे और हमारे स्किल जो है वो डेवलप्ड होगा और रिवार्ड मिलेगा, स्किल रिवार्ड जो है, और हमें क्या है, हैप्पीनेस मिलेगा लाइफ में। फ्री टाइम में हम फैमिली को टाइम दे सकेंगे या अपने जो विश है वो पूरा कर सकेंगे। तो for today it's over. Stay connected with me and thanks for watching.